गुड आफ्टरनून, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। फिर से हाजिर शेखर एंड मेरे साथ हैं अनुभव। हाय अनुभव। हाय हाय एवरीबडी। कैसे हैं अनुभव आप? बस बढ़िया। गुड। So let's wait for a couple of minutes for Sure. the other people to join. So how was the day? It's raining in Kolkata. Yeah, it's raining. Great. So It's enjoying great the weather. weather? Absolutely. Yeah, really after a long. Yeah, exactly. This year, I guess the rainfall was quite less Exactly. comparatively. So now it's 4-5 days it's been raining. It's really good. It's a relief. So how you guys are enjoying this this rainy season? Eating pakoras? Yeah? Good. Super. So Anubhav, last week I guess when we were live हम लोग डिस्कस कर रहे थे the opportunities in freelancing, like Right. how they can restart their career if they want to make a career in digital marketing. So it was really a wonderful discussion, and the points which you have highlighted are maybe helpful for them to begin with. So today's topic, basically we are going to discuss about the source of earnings, basically Okay. through digital marketing. So let's wait for another Sure. a few minutes for other people to join. So how is everything? Oh, it's great. It's great. Moving on. Yeah. It's great. So let's understand one by one, and they'll be joining. Sure. Yeah. So could you just brief like what different kind of source of earnings we can have? Sure. Yeah. So as we discussed in the last session also, like there are multiple opportunities after you are a digital marketer, right? Once you learn digital marketing or you get any skill of digital marketing, whether it's social media, SEO, ads, whatever. So how you can utilize those skills and earn money? That's the whole Correct. objective, right? So firstly, you can be a digital marketing executive or a professional where you can provide your services to the client, as we discussed in the last session also, right? You can niche down, you can select a niche, you can work on that niche, you can provide specific services to your clients. That's one way of doing it. And Specific services, as in last week we were discussing about just आपको एक चीज पकड़नी है, either it's a social media maybe, or maybe the SEO, or maybe ad management. So just master in that specific skill, not go for all at a one go. Yeah. एग्जैक्टली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई एक स्किल पकड़ लें. एज यू गो ऑन यू माइट ऐड ऑन टू योर स्किल सेट, बट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इट शुड बी स्पेसिफिक टू समथिंग, सो दैट जो क्लाइंट आ रहा है या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसको ये लगे कि यू आर एक्सपर्ट इन दैट स्पेसिफिक डोमेन, राइट? आपने उस इंडस्ट्री को अच्छे से जाना है, पहचाना है. एंड एज वी ऑल नो कि मार्केटिंग में क्या होता है ना कि द मोर यू नो द इंडस्ट्री द बेटर इट इज़ फॉर द कंपनी यू आर वर्किंग विद, राइट? जैसे कि आप अगर रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो आपको इसका आइडिया है कि इसमें कौन से चीज़ करने से रिजल्ट्स आएंगे, कौन से करने से नहीं आएंगे. सो यू हैव दैट आइडिया, यू हैव दैट माइंड सेट, तो वो हेल्प करता है क्लाइंट को एट द एंड ऑफ द डे. तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फ्रीलांसर वेर यू आर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सर्विसेज, आप और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं बीइंग अ डिजिटल मार्केटर. उसमें से एक है कंसल्टिंग. नाउ कंसल्टिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन व्हाट आई मीन बाय डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग इज़ कि जब आप काम कर रहे हैं तो आप दूसरों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. बाय सोल्यूशन आई मीन स्ट्रैटेजी, आई मीन प्लानिंग, आई मीन अ रोड मैप. कि पकड़ लीजिए, आप मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जिसके पकड़ लीजिए आप कोई ई कॉमर्स साइट के लिए काम कर रहे हैं, राइट? और कोई भी ई कॉमर्स साइट का एंड गोल रहता है टू मेक सेल्स, राइट? और वो कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि हो सकता है उसका स्ट्रैटेजी या प्लानिंग गलत है, हो सकता है वो काम कर रहे हैं कई चीज़ों पे, जैसे कि एड्स रन कर रहे हैं या सोशल मीडिया कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन वो कहीं पे फेल हो रहे हैं. सो एज अ कंसल्टेंट आपका ये काम होता है कि टू फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग, राइट, एंड प्रोवाइड अ सोल्यूशन फॉर दैट. Okay. राइट? जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पे अगर पकड़ लीजिए, आप एड्स का ही पकड़ लेते हैं, राइट? उनका जो ROI है, हो सकता है वो लोग 1 लाख रुपए महीने का डाल रहे हैं इन एड बजट और उनको उतना रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, राइट? तो उसका सोल्यूशन क्या है? एंड दैट इज़ वेयर अ कंसल्टेंट कम्स इन. आप जाइए, आप बोलिए कि हाँ आप ये चीज़ें कीजिए, चाहे वो ऑडियंस चेंज करना हुआ, बजट इंक्रीज करना हुआ या कुछ भी हुआ, आप उसे वो स्ट्रैटेजी या प्लान बताइए. आपका सिर्फ यही रोल रहेगा, आपको एग्जीक्यूशन कुछ नहीं करना है, आपको बस वो स्ट्रैटेजी या प्लानिंग देना है. But for a consultant, I believe, as far as I understand the market,
you need to understand the business first. Absolutely. I mean, if you do not know the business deeply, you won't be able to provide a solution. Absolutely. कंसल्टेंट मेरे ख्याल से कंसल्टेंट कोई एकदम आज अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो तुरंत वो कंसल्टेंट नहीं बन सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हो सकता है 1 साल बाद या 6 महीना, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपर्टीज. और इसलिए मैं पहले भी कह रहा था कि नीच डाउन, एक इंडस्ट्री पे अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं ना तो उस पर आप कंसल्टिंग भी कर सकते हैं. करेक्ट. राइट. तो उस इंडस्ट्री को पकड़ के आप आगे चल के लोग ये बता सकते हैं कि हाँ, दिस इज माई लर्निंग, दिस व्हाट आई हैव सीन, आप ये करके देखिए, एंड फॉर दैट यू गेट पेड. सिंपल एज दैट. राइट. तो कंसल्टिंग उस हिसाब से होता है. एंड यू कैन टारगेट इवन बिग कंपनीज. और कंसल्टेंट्स हमेशा बड़े बड़े कंपनीज भी ढूंढते हैं कि जो कभी कभी आके उनको थोड़ा हेल्प कर दे. क्योंकि कंसल्टेंट्स का एक फ़ायदा ये रहता है कि यू डोंट हैव टू गो एंड एग्जीक्यूट एनीथिंग, जस्ट हैव टू चॉक आउट द प्लान, क्या करना है, एंड बस. Yes, if we know the problem, we can easily. हाँ, exactly. So that is one way of doing it. And as you grow as a consultant, आपका जो है remuneration भी बढ़ता है, आपका expertise भी बढ़ता है, और आगे चल के आप और भी कई चीज़ों पे expert advice दे सकते हैं. Right. So this is something you can explore as a digital marketer. तीसरा जो मैं कह सकता हूँ, कोच या ट्रेनिंग, जो भी आप समझे. एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, आपको दूसरे लोगों को हेल्प करना है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग. अब वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो कॉलेज पास आउट से है या जिनको जॉब की ज़रूरत है, या जो अपने करंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो आप उनको वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं. यू कैन ट्रेन देम इन अ स्पेसिफिक डोमेन. ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया अनुभव. लाइक काफ़ी सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि ट्रेनिंग में भी एक एस्पेक्ट हो सकता है उनके लिए. बिल्कुल. तो कौन कौन सी ऐसी वो जगह हो सकती हैं जहाँ पे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? कुछ जस्ट देखिए, ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. एंड ऐसे कई सारे अर्बन प्रो जैसे कुछ साइट्स हैं जो जहाँ पे आप एज अ टीचर रजिस्टर कर सकते हैं. इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑफ एज अ फ्रीलांसर, एज एन इंडिविजुअल. अगर आप इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं तो do they need to pay anything to register for such websites which you just named? So हाँ, फॉर एग्जांपल अर्बन प्रो में there is a free version, there is a paid version. Okay, right? okay. तो पेड वर्जन में हाँ, यू हैव टू पे. ऑब्वियसली हर जगह का वही फंडा रहता है कि आप एक कुछ हद तक फ्री आपको मिलेगा. प्रीमियम मॉडल इसको बोलते हैं. हाँ, तो उसके बाद यू हैव टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, से 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन. So if somebody who wants to just start as a beginner, so they can go with the free one first, just to check the responses. Exactly. And then if they are getting the responses, then they can move to the paid version. Yes. बिल्कुल. That's what. Be a great opportunity. Yeah. Absolutely. Especially for the people who are already in a job and they want to have a side income, or maybe absolutely. like weekends they're free, Saturdays and Sundays, so they can spend their time, or they can utilize their time training different people on different websites. True. Absolutely. और सबसे important चीज़ इसमें ये है कि the mode is online most of the times. जब भी आप कराते हैं, you train people, the mode is online, so the time उसमें आपका सेव होता है. आप weekends को तो करते ही हैं, लेकिन आप weekdays को भी after 8 PM 9 PM जब आप ऑफिस से आ रहे हैं, तो तब भी आप मे बी एक बैच आप वहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं. लेकिन देखिए, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें भी वही चीज़ है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं तो आपको हर एक एस्पेक्ट जानना होगा डिजिटल मार्केटिंग का. राइट. आप सिर्फ एक मॉड्यूल पे नहीं सिखा सकते. लेकिन हाँ, आपका जो टारगेट ऑडियंस होगा वो होगा, पकड़ लीजिए, स्मॉल बिजनेसेस. ठीक है. पकड़ लीजिए कोई स्मॉल बिजनेस कोई रन कर रहा है और उसको अपना डिजिटल मार्केटिंग उसको सीखना है. राइट. उसको उतना डिटेल्स में नहीं सीखना है, बिकॉज ही डजंट वांट अ जॉब, ही और शी डजंट वांट अ जॉब. उसको अपने बिजनेस के लिए लर्न करना है. तो हो सकता है वो स्पेसिफिक सिर्फ सोशल मीडिया का ही कोई ट्रेनर ढूंढ रहा हो, या एड का ही कोई ट्रेनर ढूंढ रहा हो, तो आप उस हिसाब से अपने आप को पोजीशन कीजिए. ठीक है. बिकॉज एज अ ट्रेनर यू नीड टू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस बिहाइंड योर बैक, क्योंकि कई सारे मॉड्यूल्स है डिजिटल मार्केटिंग में और हर एक मॉड्यूल को इक्वली आपको कवर करना पड़ेगा. सो इफ यू जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, आप हो सकते हैं एक मॉड्यूल के साथ स्टार्ट करें या 2 मॉड्यूल के साथ स्टार्ट करें, वेरेवर यू कंफर्टेबल, और उसके बाद यू ग्रेजुअली बिल्ट ऑन दैट. करेक्ट. तो वो आप कर सकते हैं. और मेरे ख्याल से सबसे ईजी जो टारगेट मार्केट यहाँ पे रहेगा, जैसे मैंने बोला, एक तो है स्मॉल बिजनेस. यू कैन टारगेट स्मॉल बिजनेसेस. इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑल्सो. जैसे कि पकड़ लीजिए, ऐसे कई सारे क्लाइंट्स होते हैं. आपका भी जो क्लाइंट होगा, जब भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको भी हो सकता है कभी कभी ट्रेन करना पड़े. करेक्ट. एंड दे चार्ज सर्टन अमाउंट कि आप, हाँ, मैं आपको 5 घंटे का ट्रेनिंग दूंगा एंड आई विल टेक सो एंड सो मनी. तो वो भी आप कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे ऐसे करके आप अपने एक्सपीरियंस को बिल्ड कीजिए. लेकिन मेरा यही सजेशन है सबसे कि वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग,
आप स्पेसिफिकली उस एक मॉड्यूल को पहले एक्सपर्ट आप बन जाए उस मॉड्यूल में, उसके बाद आप अगले मॉड्यूल में शिफ्ट करें। आप हर चीज़ को एक्सप्लोर ना करें व्हेन यू आर बिगिनिंग, लाइक टू गेट द बेटर आउटकम। हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज आफ्टर 1 ईयर आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आई वर्कड विद से 10 क्लाइंट्स, आई हैव ट्रेंड ओवर 100 स्टूडेंट्स, जो भी है, तो वो आपका जो है पोर्टफोलियो में वो एक गुड पॉइंट होगा, क्रेडिबिलिटी बनेगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, एग्जैक्टली। तो वो आप कर सकते हैं। एंड so these are the 3 major things which you can do as a digital marketer. You can be a consultant, you can obviously provide your services, आप ट्रेनिंग या कोचिंग जो भी आप बोले उसको आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा भी एक चीज़ है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू मतलब योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल सेट, जैसे कि पकड़ लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग, करेक्ट, राइट। सो एफिलिएट काफी सारे सवाल हैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। इवन आई वाज थिंकिंग टू हैव अनदर वी विल डेफिनेटली हैव लाइव सेशन और मे बी अ वीडियो ऑन दिस एफिलिएट मार्केटिंग। श्योर। तो एफिलिएट मार्केटिंग में यही है कि यू नीड टू हैव पेशेंस। कोई भी चीज़ यहाँ पे, क्योंकि जो दिखाया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग, हम लोग कई बार गूगल में अगर सर्च करते हैं अर्न मनी ऑनलाइन या फिर ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ढूंढते हैं, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह वगैरह, स्पेशली एज अ स्टूडेंट इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बक्स चाहिए होते हैं हमेशा। तो देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होगा, एफिलिएट मार्केटिंग भी एक दिन में नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, इट्स ऑल अबाउट आप कौन से प्रोडक्ट्स चूज़ कर रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन यू आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग पकड़ लीजिए, मैं बोलता हूँ मोबाइल एक्सेसरीज। अब मोबाइल एक्सेसरीज ऐसा एक चीज़ है जो लोग कभी कभी चेंज करते रहते हैं, जैसे हेडफोन हुआ, बैक कवर्स हुआ, तो उसका परचेज हमेशा कंटिन्यूस रहता है। लेकिन अगर आप एक 20-30 हज़ार का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब एफिलिएट उसका मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपका हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, ठीक है। सो इफ़ यू वांट अ रेगुलर इनकम टू कम इन, आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनका प्राइस रेंज अराउंड 200, 300, 400, मैक्सिमम 500 तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वो रिसर्च पहले आपको करना होगा, डिमांड एक्चुअली बहुत ज़्यादा है उस प्रोडक्ट पे, एग्जैक्टली। और किसके साथ आप एफिलिएट करना चाहते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तो है ही, इनके साथ भी आप एफिलिएट कर सकते हैं। बाहर में कुछ ऐसे वेबसाइट जैसे क्लिक बैंक है, तो क्लिक बैंक का काम क्या होता है, मेन सबसे बड़ा जो एफिलिएट का जो मार्केट प्लेस है वो क्लिक बैंक का है। तो क्लिक बैंक क्या करता है, वो कुछ प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके रखता है बेस्ड ऑन द कैटेगरी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला मोबाइल एक्सेसरीज, अब वहाँ पे आपको ब्रांडेड नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनका हो सकता है आपने नाम कभी सुना ना हो, लेकिन वो इतने कम प्राइस में मिलेंगे और इतनी फीचर्स के साथ मिलेंगे कि लोगों को लगे हाँ 300 में मेरे को इतना कुछ मिल रहा है, मे बी आई शुड टारगेट दैट प्रोडक्ट। तो वो एक है, बट एटलीस्ट यू नीड टू गिव इट 3 to 6 months टाइम अगर आपको एक अच्छा सब्सटेंशियल इनकम चाहिए फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग विद कंटिन्यूअस पोस्टिंग ऑन योर सोशल मीडिया। और एक चीज़ फाइनल में ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग यू नीड टू हैव अ गुड सोशल मीडिया प्रेजेंस एज वेल। जैसे कि पकड़ लीजिए आपका मोबाइल एक्सेसरीज आप बेच रहे हैं, तो आपका जो अकाउंट होगा वो गैजेट्स मोबाइल के बारे में ही होना चाहिए, और वहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 5,000-6,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। उसके बाद यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि क्या है ना, लोग वहाँ पे आएंगे, लोग देखेंगे आपके पास सिर्फ 10 फॉलोअर्स हैं, ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं होगा। तो व्हेन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, think of affiliate marketing definitely, but don't expect it to give results from day one. It will take time. So this is everywhere. This is applicable everywhere. Exactly. You cannot expect a result from the very day one. Exactly. It may take time, right? And you have to have patience. True. Another thing, Anubhav, I want to ask, because we received plenty of emails on that. Like if somebody starts his own career in digital marketing, कंपनीज में जो रोल्स हैं एक डिजिटल मार्केटर के, वो किस तरीके के रोल्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फॉर ईच रोल, हमारे जो व्यूअर्स हैं समझना चाहते हैं वो चीज़। सो इफ यू कुड जस्ट एक्सप्लेन जस्ट इन ब्रीफ, मे बी वी कैन हैव अनदर वीडियो। एब्सोल्युटली, वी कैन। तो सी व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ योर करियर लाइक एज अ डिजिटल मार्केटर, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले very few companies would actually give you the profile of an ads manager or ad executive, जो भी आप बोले, क्योंकि एड्स ऐसा एक चीज़ है जहाँ पे क्लाइंट काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। सो एज अ फ्रेशर अब वो एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं रहेगा कि आप वो रिजल्ट इमीडिएटली ला के दे, राइट। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, पीपल एक्चुअली गो इन SEO और सोशल मीडिया, ठीक है। SEO एग्जीक्यूटिव हो सकता है, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हो सकता है, कंटेंट राइटर हो सकता है, ठीक है। कंटेंट राइटर बोले या कंटेंट मैनेजमेंट बोले, जो भी बोले, क्योंकि उसमें कंटेंट राइटिंग भी है, कॉपी राइटिंग भी है। सो ऐसे कुछ स्किल्स हैं। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, आपने जैसे रोल्स बताए एग्जीक्यूटिव लेवल रोल्स,
इसमें एक रेंज अगर हम बता पाएँ अपने व्यूअर्स को कि वो सैलरी रेंज कितनी हो सकती है? देखिए वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर एंड द लोकेशन एज वेल आई बिलीव. हाँ बिल्कुल. सो इफ़ यू टॉक अबाउट से कोलकाता, जस्ट टेकिंग कंसिडरेशन कि कोलकाता के जितने भी कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं या जो भी है, तो कंपनीज भी कई प्रकार के होते हैं. एजेंसीज होते हैं तो जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे ही काम करते हैं. ओके. कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो मे बी रियल एस्टेट कंपनी है, उनका भी एक डिजिटल मार्केटिंग टीम है. ओके. तो उनका अलग है, वो प्रोडक्ट लेवल में प्रोडक्ट लेवल कंपनीज होती हैं, सर्विस लेवल कंपनीज होती हैं. यस यस यस. एंड जो बेसिकली जो बड़े कंपनीज या रियल एस्टेट हुआ, हॉस्पिटल्स हुआ, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हुआ, उनका जो टीम होता है वो कंपेरेटिवली स्मॉल टीम होता है. मे बी 6-7 पीपल अप्रॉक्सीमेटली. हर एक सेगमेंट में एक इंडिविजुअल बैठा हुआ है. और उसमें प्रेशर कम रहता है वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं. एजेंसी में क्या होता है, यू हैव टू वर्क विद डिफरेंट क्लाइंट्स. Exactly. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, मेरा ये सजेशन हमेशा ही रहेगा कि स्टार्ट ऑफ विद अ स्टार्टअप विद एजेंसी. अब वहाँ पे एक्सपोजर ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा. मे बी मल्टीपल बिजनेसेस यू गेट टू अंडरस्टैंड, यू गेट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट क्लाइंट्स एज वेल. एग्जैक्टली. तो क्योंकि प्रोडक्ट कंपनीज आर नॉट सेइंग वी आर बैड, बट क्या होता है ना कि वहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आप सैचुरेट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं होता. जो है वो कम है, एक्सपोजर कम, लिमिटेशंस हैं. आपको यू हैव टू स्टिक टू स्पेसिफिक डोमेन में आपको काम करना होता है. एंड एज आई सेड, SEO एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, एड्स एग्जीक्यूटिव यू कैन नॉट बिकम व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, बट डेफिनेटली इफ यू हैव द स्किल सेट आप स्लोली बिल्ड कर सकते हैं. From a social media executive, I've seen people become Facebook ad expert. From a SEO executive, I've seen people become Google ad expert. तो वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन that will take say 1 to 2 years of time before you actually go to that spot. तो 2 साल बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि you can become a ad manager या ad executive, जो भी बोले, right? तो उसके अलावा कंटेंट राइटिंग है, ईमेल मार्केटिंग इज अ स्कोप, बट उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है वेरी ऑनेस्टली. क्योंकि ईमेल मार्केटिंग का जो मेन काम होता है वो होता है फ्रॉम अ सेल्स प्रोस्पेक्टिव. ठीक है, कोई भी कंपनी अगर ईमेल मार्केटर को हायर कर रहा है तो फ्रॉम अ सेल्स प्रोस्पेक्टिव कर रहा है कि आप आइए, आप ईमेल कीजिए, आप कोल्ड ईमेल भेजिए, आप जो भी है आप लीड्स लाइए. सिंपल लॉजिक है. तो वो थोड़ा मोनोटोनस, मेरे को लगता है वो थोड़ा मोनोटोनस काम है. और अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक आई हैव सीन पीपल हु आर इन डिज़ाइन ऑल्सो. मतलब ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड नहीं है, लेकिन आई हैव सीन पीपल हु आर इन मार्केटिंग एंड दे हैव स्विच टू डिज़ाइन. क्योंकि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जिसको मार्केटिंग भी पता है, जिसको डिज़ाइन भी पता है, दोनों जब कंबाइन होते हैं ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स. ठीक है, क्योंकि कंटेंट में मार्केटिंग थोड़ा बहुत रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी रहना पड़ेगा, एंड दैट शुड कम आउट गुड, राइट. तो ओवरऑल सैलरी का मैं बात करता हूँ. सैलरी का जहाँ तक बात है, सी इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 10,000, इट कैन गो अप टू 20,000 डिपेंडिंग ऑन द कंपनी. ठीक है. एंड द गुड थिंग अबाउट डिजिटल इज देयर इज नो स्पेसिफिक. ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद आपका 10% ग्रोथ होगा या 3 साल बाद आपका 15% ग्रोथ होगा. ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है. ग्रोथ आपके ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस, हाउ यू परफॉर्मेंस के ऊपर है. एग्जैक्टली. हाउ यू लर्न फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग वर्क और समथिंग. ट्रू. तो सो यही ओवरऑल सिनारियो है. बाहर का जो मार्केट है मेट्रोज में और भी ज़्यादा अच्छा है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मुंबई, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बैंगलोर, अच्छा इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सैलरी वैसे ही ज़्यादा मिलता है बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द बिग कंपनीज जो है, खास करके इफ़ यू गो टू बॉम्बे, एजेंसीज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देयर. ठीक है, तो वो एक बड़ा ये है कि क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री है और आजकल सब कुछ डिजिटल है. सो so they pay a lot of money. Correct. So in terms you get that money in a way. So वो एक है. बैंगलोर में स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा है. अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर, हाँ, फंडेड स्टार्टअप्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है बैंगलोर में. तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, लेकिन यू कैन स्टार्ट ऑफ स्मॉल एंड यू कैन ग्रेजुअली बिल्ड योर सेल्फ. तो मेरा ये सजेशन रहेगा. Hope you've enjoyed the session. It was wonderful. Thank you, Anubhav. You have given proper information in detail. Guys, hope you have enjoyed, and we'll see you in the next live session on many of the topics. Thank you so much for joining in. See you. Bye bye. Thank you guys.